میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے۔ ایسا نہ کرنا۔ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے۔ پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائیا بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہنا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا۔ میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں۔ اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ۔
दुआए ज़रर से बच जाओ, किसी को इतना ना सताओ कि बेचारा खुद कुछ ना कर सके और अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे, बचो। वो मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूं, गरीबों की बद्दुआएं दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती हैं। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए और अपने ही घर से खौफ आए और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे और कभी छत पे और कभी नीचे और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो जिसको सताया उससे माफी मांगे, फिर जिसका दिल तोड़ा है उससे जाके अल्लाह की रिजा के लिए माफी मांग के आए। इसलिए कि कुछ सुकून ऐसे हैं जो सिर्फ माफियों से मिलते हैं। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ़े बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, गिन मालिक इन बंदों को, ये इतनी तकलीफ देते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो जिनके लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए, सारे गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकले जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन नबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते हैं, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन नबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा जाओ पता करो जाके, मालूमात की। तो हर बंदा कहने लगा इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन नबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक, वो कहने लगा ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल व इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन नबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन नबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन नबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी। और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था, और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, बाज क्यों नहीं आता तुझे, शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन नबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अजियत दी, क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहें? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, अगर वो कसम खा के कहे ना, या अल्लाह ऐसा कर दे, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, वो कसम खा के कहे ना, लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, वो अगर कसम खाए तो रब उनकी कसम भी पूरी फरमा दिया करता। और मेरे भाई, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, कोई जगह ऐसी तलाश कर जहां से दुआ मिल जाए, जहां से करम हो जाए, जहां से अता हो जाए, जहां से अल्लाह का फजल हो जाए। और फिर हमें भी चाहिए हम दुआएं देते रहें, माँ बाप को चाहिए औलाद को दुआएं देते रहें, असातिज़ा को चाहिए शागिर्दों को दुआएं देते रहें, मशाइख को चाहिए अकीदतमंदों को दुआएं देते रहें, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को दुआएं
चले आप आमीन कहें। अब आपने इनकार नहीं कर, सारे दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे भाइयों को हमसे ज्यादा अता फरमा, या अल्लाह भाई को हमसे, या अल्लाह भतीजों को ज्यादा अता फरमा, भांजों को ज्यादा अता फरमा, अल्लाह महल्लेदारों को ज्यादा अता फरमा, पड़ोसियों को ज्यादा अता फरमा। ये मांगो ना दुआएं, इसमें भला है, इसमें नफा है। अब जिन्होंने परेशान होके आमीन का है वो खुश हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तू किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक में कबूल फरमाता है। लोग खुश हो गए आप लोग। ओ भाई दुआ मांगे किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी, किसी के लिए भी बद्दुआ। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका जज्बाती लोगों का है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे जज्बाती लोगों से दोस्तियां नहीं करनी चाहिए, जज्बाती लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं तो वो किसी के हक में क्या करेगा। वो कहते थे जज्बाती लोगों से बचो। ओ भाई हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जरा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे, घर वाली से, बद्दुआएं शुरू कर दी, अपने आप को बद्दुआएं दे। लड़ाई किससे हो रही है, बहन भाइयों से, बद्दुआएं शुरू कर दी। माँ बाप से लड़ाई हुई, बद्दुआ दे रहे, और बड़ी बड़ी तलख होके, बड़ी बड़ी सख्त होके। ओ भाई आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज बोलते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो, यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो, गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करे। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा, अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है, तुझे क्या मुसीबत बन गई है, तू कहां से निकला है, तू कहां पहुंच गया है, तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं, तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं, नहीं तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सही यार ये अनपढ़ बंदे ने कितो सबक लिया। आज जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्जों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है, पर दुआ नहीं। आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्जों में, और कोई बंदा मिल जाए ना। मैं वैसे मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूं, आजकल ना कोई मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए, अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूं जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फोटो मिल जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं कह गौस पाक दी ते कोई फोटो नहीं, सानू ते हर वेले याद रहिंदे ने।
कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले ले के जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी जात को मैं कहूं कि तू मैं को जीते दिल भर सोना। और कितना सोना, ओ सोना ते रज के सोना ते सोना जिवें सवेरा, मैं को जाते रज के को जा जिवें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की, इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूं तो तू फोटो बना, इतनी जरूरत कभी हुई नहीं। इन क्या करें, दौर बदला, हालात बदले, जमाना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ कर दे। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ। उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। मैं सही रवायत पेश करता हूं, मेरे नबी करीम ने फरमाया था उम्र फारूक से, सैयदना उमर से, कतई जन्नती उमर जिनका हुजूर जन्नत में महल देख के आए। नबी करीम ने फरमाया तो उमर, लोग हज करने आएंगे, जिहाद के लिए आएंगे, अगर यमन वाले लोग आए और तुझे उनमें से मेरा अवैस करनी मिल गया तो उमर उससे अपने लिए दुआ करा लेना। उमर अवैस से दुआ करा लेना, उसे कहना तेरे लिए दुआ कर दे। हजरत फारूक आजम ढूंढते रहे, मुलाकात हुई सैयदना वैसे करनी से, कहा दुआ कर दे यार मेरे लिए। वो ढूंढो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई अपने हक में दुआएं, इल्तिजाएं अल्लाह के हुजूर। कुछ लोगों की अर्ज, मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोगों को दुआ लग जाती है। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता उजला नजर आए ना, उसका कभी माजी टटोलोगे ना तो कभी कोई उसके घर से रोटी खा गया तो फकीर और उसने ज़ौक से खिलाई थी। कभी पीछे से टटोलोगे तो कोई रोटी खा के दुआ कर गया था। कोई चंद घड़ियां दरवाजे पे रहा था, इसने नेकी की थी, दुआ कर गया था। कभी टटोलोगे, ढूंढोगे तो बीमार माँ ने किसी को दुआ दी थी कि पुत्र अल्लाह तेरे ऊपर फजल करे। किसी के बूढ़े बाप बीमार ने दुआ दी थी अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न करे। किसी ने दुआ दी थी, वो दुआ है जो उसके दाएं बाएं आगे पीछे चलती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहन के फिरते थे। लोगों ने कहा हुजूर सख्त गर्मी और फिर आप तो बड़े दलेर आदमी, जवान और गर्मियों में भी मोटे कपड़े। फरमाने लगे नबी करीम ने दुआ दी थी कि अल्लाह अली को मौसम की शिद्दत से बचा के रखना, मौसम कोई भी हो अली पे असर ही नहीं करता, शेर खुदा पे असर ही नहीं होता। मोटे पहन लूं पतले पहन लूं, अल्लाह मेरे जिस्म को मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। अपने लिए दुआएं समेट चक्रों में ना पड़े, वो जी साहब की अल्लाह सुनता है, किसने कहा नहीं सुनता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना तो रब करीम कबूलियत से फरमाते हैं देर न करना, जरा जल्दी जाना, कबूलियत से अल्लाह कहता है। कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना हाथ, तो अल्लाह ताला मरहूम खुर्शीद गिलानी से अल्लाह ताला उन पर फजल करे। कुछ थोड़ा रब्त रहा, उन्होंने ना एक जुमला अपनी वालदा के लिए कहा था। कहने लगे मेरी अम्मा अनपढ़ थी, उपले थापती थी और उनका आंचल दुपट्टा भी कई दफा मैला रहता था। पर मरहूम गिलानी साहब कहते हैं मेरी माँ कभी मैला दुपट्टा भी सामने करके अल्लाह से
मेरे लिए रहमत मांगती थी तो मुझे लगता था मालिक ने फजल फरमा दिया। भाई अपने लिए रहमत अपनी वालदा से, वालिद से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से दुआएं ले। अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ करने गया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं आएगा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बदलें, गुनाह करें तो मस्क ना हो, हबीब नहीं बदलेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह ये आपस में लड़े ना। तवज्जो करना जुमलों पे, ऐ अल्लाह ये आपस में लड़े ना। अल्लाह ये भी कह सकता था हबीब ये नहीं कबूल करनी दुआ। अल्लाह बेनियाज है ना, चाहे कबूल करे और चाहे, तवज्जो करो, गौर करो बात पे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो ये नहीं फरमाया हबीब कबूल नहीं करता, कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांग ही ना। ऐ हबीब तू दुआ मांग, तू मांगे मैं कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। इस तरह कर ये दुआ मुझसे। नबी पाक ने मुनाफिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, ऐ मौला तू मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह करम फरमा, मुनाफिकीन को भी बख्श दे। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने मुझे मना किया, ऐ महबूब ये वाली दुआ, ये दुआ ही ना मांग। ये दुआ अल्लाह को कोई मजबूर कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह प्यार करे तो। भाई दुनियादारी का चौधरी साहब का, मौलवी साहब का, पीर साहब का एक आम मशहूर माकूला है, फलां बंदा आ गया था, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। क्यों जी? वो बंदूक लेके आया था, कर देना था इनकार। फलां आदमी आ गया था, फिर मैं उसको इनकार, और फलां बंदे को साथ ले आया था, उसको इनकार हो सकता? क्यों जी? दो बातें होती हैं, या प्यार बड़ा है या इज्जत बड़ी है। दो ही बातें हैं, या मैं उससे प्यार बड़ा करता हूं या मैं उसकी। अल्लाह अपने नबी से प्यार भी बड़ा करता है और अपने नबी की इज्जत भी बड़ी फरमाता है। बस ये समझ ले बात। वसीले का माना यह है कि अल्लाह अपने नबी से प्यार करता है, अपने महबूब को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाता है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का ये हाल था कि सहाबा हर काम के लिए दरवाजा रसूल पे पहुंच जाते थे। प्यास लगी तो हुजूर के पास, भूख लगी तो नबी पाक के पास, हजरत अबू हुरैरा को हाफजा चाहिए तो नबी पाक के पास, किसी को औलाद की जरूरत है तो वो रसूल पाक के पास, किसी को ताकत की जरूरत है तो वो भी नबी पाक के पास। हर आदमी जाता था, उन्हें पता था देता खुदा ही है, पर वसीला मुस्तफा देता है सल्लल्लाहु अलैहि। और हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया मैं तो बांटने वाला हूं, मैं कासिम हूं, मैं कासिम हूं। वल्लाहु यूती, हाँ अता करने वाला अल्लाह है, मैं कासिम हूं और देने वाला अल्लाह है। सहाबा हमेशा नबी पाक के वास्ते से दुआ मांगते, उन्हें पता था अगर तेरे वास्ते से मांगू तो कोई दुआ बेअसर न ठहरे। तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा, दीगर तमाम कुतब में इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में नकल किया। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं मैं नबी पाक के पास बैठा था तो एक नाबीना से आबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे आंखें अता फरमाए, दुआ करें। अब हुजूर ने पता क्या कहा? नबी पाक ने फरमाया दो बातें, या तू सब्र कर ले या मैं दुआ कर देता हूं। सब्र करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा, या तू सब्र कर ले या मैं। सहाबी बड़े प्यारे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा ही, मैंने नहीं सब्र करना, मुझे आंखें चाहिए। और फिर यहां आके सब्र करूं, ऐन खजाने के पास जाके सब्र करूं? हुजूर मैं नहीं सब्र करता, आप दुआ करें। तो नबी पाक ने दुआ सिखाई, फरमाया दो नफल पढ़ जाके और दो नफल पढ़ के मेरे वसीले से दुआ कर। क्या कर? अल्लाह से कह के अल्लाह मैं तेरे पास तेरे रसूल का वसीला लेके आया हूं, और फिर कहना या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु अलैक, कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं। और फिर अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह तू अपने नबी की सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। कौन सिखा रहा है? बोलिए किसको? बोलिए। कहा जा मेरे वसीले से जाके दुआ कर। हजरत उस्मान कहते हैं वो चले गए, दो नफल पढ़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। फरमाते हैं वो चले गए पर हम कोई नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? तो सहाबा का नजरिया बताता है कि वो गए इसलिए नहीं कि हम हुजूर का मौजज़ा देख के ही जाएंगे। कहते हम गए नहीं, थोड़ी देर गुजरी
تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, بصیرت کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ, ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک, اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے, حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی, اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے.